آرڈیننس مکمل طور پر بدنیتی پر مبنی ہے. حکومت کرپشن کے لیے NRO ہے, عدلیہ پر حملہ ہے. اپوزیشن سے میں کہوں گا کہ ہر وقت جلسوں میں رونے دھونے کے علاوہ ایک اپنی پارلیمنٹ میں جو فنکشن ہے اپوزیشن کا وہ ادا کرے. پوری چھٹی ہے حکمرانوں کو جس طرح مرضی پاکستان کی عوام کو لوٹیں, اور مہنگائی کا جو ہے ایک طوفان جو آیا ہوا ہے کہ عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو چکی ہے. ہمارے پاس 5 سال مضبوط اکثریت تھی. ہم چاہتے تو ایک آرڈیننس کے ذریعے اس نیب کے کالے قانون کی شکل بدل سکتے تھے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا. صدر مملکت نے بدھ کے روز چیئرمین نیب کی دوبارہ تقرری کے حوالے سے اور نیب اختیارات کے حوالے سے نیا ترمیمی آرڈیننس جاری کر دیا, جس کے مطابق موجودہ چیئرمین نئے چیئرمین کی تعیناتی تک کام جاری رکھ سکیں گے. اس کے علاوہ نئے چیئرمین کے لیے اور اس کی تقرری کے لیے اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان مشاورت کی ضرورت ایز سچ نہیں ہوگی, بلکہ یہ مشاورت صدر مملکت دونوں فریقین سے کر سکیں گے, یعنی کہ وہ اپوزیشن لیڈر کو بھی اعتماد میں لیں گے اور وزیر اعظم کو بھی اعتماد میں لیں گے. اس حوالے سے فواد چودھری صاحب نے کیا کہا اس پہ بعد میں آتے ہیں. بہرحال جو چیدہ اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. اس آرڈیننس کے مطابق اگر یہ مشاورت چیئرمین نیب کے حوالے سے اس کی تقرری کے حوالے سے نہیں ہو پاتی ہے تو صدر مملکت اس معاملے کو پارلیمانی کمیٹی میں بھیج دیں گے. پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کے بھی 6 اور حکومت کے بھی 6 افراد ہوں گے. اس کے علاوہ بڑے انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جن کو نیب آرڈیننس میں مینشن کیا گیا ہے, جو نیب اختیارات یا نیب قوانین سے مبرہ ہوں گے, معاورہ ہوں گے, یعنی ٹیکس کے معاملات, نجی کاروباری افراد, بیوروکریسی, وفاقی اور صوبائی کابینہ کے جو بھی ڈیسیژنز ہوں گے, بینکنگ مقدمات جتنے بھی ہوں گے, وہ نیب کے پرویو میں نہیں آئیں گے, بلکہ نیب قوانین میں اس کو کسی بھی طرح سے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکے گا یا مقدمات نہیں بنائے جا سکیں گے. اس کے علاوہ CCI میں جو بھی میٹرز ڈسکس ہوتے ہیں, ایکنگ میں جو بھی میٹرز ڈسکس ہوتے ہیں, NFC سے ریلیٹڈ, CDW سے ریلیٹڈ اور PDW سے ریلیٹڈ, اور ان کے تحت جتنے بھی معاملات ہوں گے ان کو کسی بھی صورت نیب کے پرویو میں نہیں دیا جا سکے گا. کمیٹیوں اور ذیلی کمیٹیوں کے معاملات بھی نیب نہیں دیکھ سکے گی, اور اس کے علاوہ احتساب عدالتیں جتنی بھی صدر مملکت بنانا چاہیں گے وہ بنا سکیں گے. اور اس حوالے سے جو احتساب عدالتوں کے جج ہیں وہ بھی صدر مملکت 3 سال کے لیے متعلقہ ہائی کورٹ کے جج سے, چیف جسٹس سے مشاورت کے بعد تعینات کر سکیں گے. اور چیئرمین نیب کی تقرری 4 سال کے لیے ہوگی, لیکن اس کو دوبارہ بھی اپائنٹ کیا جا سکے گا. اور پھر اسی طرح سے اگر چیئرمین نیب کسی مس کنڈکٹ کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل رسپانسبل ہوگی کہ اس کا احتساب کرے, اور سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے چیئرمین نیب کو ریموو کیا جا سکتا ہے. اور اس کا بھی احتساب جو ہے وہ ایک صدر مملکت کے آرڈیننس سے ہو سکے گا, یعنی حکومت مسلسل ایک پریشر رکھنا چاہے گی. اس کے علاوہ ضمانت پہلے نہیں دی جاتی تھی کوئی بھی جو نیب کا ملزم ہوتا تھا, لیکن اب یہ ضمانت احتساب عدالت کی جانب سے دی جا سکے گی. لیکن زر ضمانت جتنے کا الزام لگے, یعنی 400 ارب روپے کے الزام ہے, اتنے ہی ارب روپے جمع کروانے پڑیں گے, اس کے بعد ضمانت کسی بھی ملزم کو مل سکے گی. یہ ویسے بین الاقوامی انسانی حقوق کی خلاف ورزی بھی ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت ہو سکے گی, اور کیس کسی بھی عدالت میں ملک بھر میں سبمٹ کیا جا سکے گا, فائل کیا جا سکے گا, دائر کیا جا سکے گا. مبینہ طور پر یہ آرٹیکل جو ہے, یہ کلاس جو ہے, یہ شک جو ہے, یہ پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دی گئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ اپوزیشن کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ کالا قانون ہے, اور حکومت نے چیئرمین نیب کو توسیع نہیں دی بلکہ اپنے آپ کو توسیع دی ہے, چونکہ وہ اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کو جیلوں میں ڈالے جا رہے ہیں, اور حکومت کی اب باری آنے والی ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسے, بہت سارے اسکینڈلز ایسے ہیں جس میں حکومت کو اس آرڈیننس کے تحت جو کہ بل بننے جا رہا ہے بہت زیادہ ریلیف ملے گا. سب سے پہلے تو آٹا چینی جو اسکینڈل ہے اس میں ریلیف ملے گا. دواؤں سے ریلیٹڈ جو اسکینڈل تھا اس میں بہت سارے پیسے کمائے گئے, اس میں بھی حکومتی اراکین کو ریلیف مل سکے گا. پھر LNG کا اسکینڈل ہے اور بہت زیادہ فرنس آئل لابی کو فائدہ پہنچایا گیا, اس میں بھی بہت زیادہ فائدہ حکومتی اراکین کو, آفیشلز کو مل سکے گا. اور
अपोजिशन इसको एनआरओ बुनियादी तौर पर करार दे रही है, कह रही है आइन से मुतजादिम है और गैर आइनी है और अदलिया पर न सिर्फ हमला है बल्कि ये शख्सी हुक्मरानी की तरफ एक पहला कदम है या उस तरफ मामला जा रहे हैं। तो हुकूमत को क्या जरूरत पड़ी है कि इसी चेयरमैन नैब को दोबारा लाना है? क्या यही चेयरमैन नैब एक ही आदमी ईमानदार रह गए हैं पूरे मुल्क पे? इसी पर बात करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहला रजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वजीर भी हैं। बहुत शुक्रिया शहला रजा साहिबा। फिरदौस शमीम नकवी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाफर इकबाल साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान शफीक साहब साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। गैर रवायती तौर पर आज मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा। फिरदौस भाई आपसे करना चाहता हूं, मुझे बताइए कि क्यों इन चेयरमैन को आप तोसी देना चाहते हैं? मैं तो नहीं कहता कि इनको तोसी देना चाहते हैं, बात तो वो है ही नहीं। आप मसले को, अच्छा मैं बाकी हजरात से पहले कह दूं, मुझे एक जगह जाना है। मैंने खास तौर पे ये टाइम स्लॉट 10-15 मिनट का निकाल के शाहिद भाई की रिक्वेस्ट थी, तो मैं आप लोगों की किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता था, मैं फरार होना चाह रहा हूँ डिस्कशन से। इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट मैं मजबूर हूँ। देखिए मेरे लिहाज से ये जो है प्राइमरीली ये क्राइसिस आया है इस बात से कि कैन बी कंसर्न एक ऐसे शख्स को जो खुद एहतसाब अदालत में बेतहाशा केसेस का सामना कर रहा है, क्या उसके साथ मशावरत हो सकती है या नहीं हो सकती? हमने इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के लिए मशावरत की, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए की, उस वक्त उनका कोई जाती उसके अंदर मामला नहीं था। ये सारी कंट्रोवर्सी उससे आ रही है। इस वक्त ऑपोजिशन के पास बेतहाशा चांसेस थे। एक चांस ये था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन किसी और को नॉमिनेट करते, वी वुड स्टिल बी बाउंड, कोई ऐसे शख्स को कर देते जिसके खिलाफ केसेस नहीं है। अभी इमरान खान साहब पर भी नैब के रेफरेंस मौजूद है, हेलीकॉप्टर केस में वो नामजद मुलजम है सर। देखिए एक चीज है कि वो स्टेज ऑफ केस और इस स्टेज ऑफ केस के अंदर और जो कानूनी इश्यूज है उसके वो देख लीजिए। टोटल खान साहब पे कौन सा केस है? केस है हेलीकॉप्टर केस। हेलीकॉप्टर केस की टोटल कॉस्ट क्या है? 1,28,000 रुपए। कम ऑन, लेट्स नॉट मेक अ जोक आउट ऑफ दिस कंट्री। नहीं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं ना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये मुशावरत लाजमी है। क्या कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन? जो कह रहा है एक चार्ज है। चार्ज क्या है? हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया है और उस हेलीकॉप्टर को डोंट कंपेयर इट विद द चार्जेस ऑन शहबाज शरीफ कि जो चार्जेस है, जो बंगलों के है, जो हिस्ट्री है, जो फेक अकाउंट्स है, जो केसेस है। प्रिंसिपली तो आप क्या 1 रुपए की चोरी हो या 1 अरब की चोरी हो तो चोरी होती है। उस प्रिंसिपल के लिहाज से तो आप कहेंगे सही है, लेकिन वो चार्जेस कोई प्रूवन नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई उससे डिनाई नहीं कर रहा। वो बात ये हो रहा है कि तो ऑपोजिशन पे कौन सा प्रूवन है सर? की बात नहीं, सॉरी, उसके एविडेंसेस, जीआईटी रिपोर्ट्स, इवैल्यूएशन, कोर्ट के अंदर ट्रायल, कोर्ट के अंदर जवाब ना देना, ये सारी चीजें जो है वो सब आती है। लेकिन जो मैं जिस तरफ बयानिए को लेके जाना चाह रहा हूँ, लेट मी प्लीज कंप्लीट। द इशू इज नॉट कि इनको एक्सटेंशन देना चाह रहे। इशू ये है कि ऑपोजिशन लीडर क्योंकि वो केसेस में इन्वॉल्व है, इसलिए उनको कंसल्टेशन वैसे नहीं हो सकती। अब उसके लिए एक तरीकाकार निकाला गया कि पार्लियामेंट की कमेटी बराबर लोग वो भी सेटल कर ले। अगर वहां भी ये डेडलॉक खत्म नहीं होगा तो फिर प्रेसिडेंट के पास दोबारा जाती है, वो चीफ जस्टिस साहब से कंसल्ट करके करेंगे। अब ये प्रोसेस जो है फॉर वन मोमेंट छोड़ दीजिए। अगर आप न्यूट्रली तौर के ऊपर भी बात कर रहे हैं कि अफ्रेश ये लिख रहे हैं, अफ्रेश लिख रहे हैं, तो आप अफ्रेश भी अगर लिखेंगे तो ये जितनी तरामीम है आप उनको देखेंगे। इस वक्त गवर्नमेंट को, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे शैला से पूछे कि ब्यूरोक्रेसी का क्या हाल हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी का मसला ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही थी। वो हर चीज के पीछे कहती है कि हमें तो नैब का खतरा है। अब उनको जो जहां जिस जगह पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रही है उन चीजों को परव्यू से हटा दिया जाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। फिरदौस भाई एक छोटा सा सवाल ले लें, कौन सा ऐसा स्कैंडल है, कौन सा ऐसा फाइनेंशियल क्राइम है जिसमें ब्यूरोक्रेट या बिजनेसमैन इनकॉर्पोरेट नहीं होता है, उसमें कल्परेट नहीं होता है, या उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्टली बेनिफिशियल नहीं होता? आई डोंट थिंक सो कि आप इंटेंट समझ रहे हैं। मैं आपको बड़ी क्लियरली इंटेंट कह रहा हूं। जहां कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो रही है उन डिसीजंस को नैब के परव्यू से हटा दिया है। मी एज एन इंडिविजुअल, चाहे मैं ब्यूरोक्रेट हूं चाहे पॉलिटिशियन हूं, अगर मैं कोई नाजायज फायदा उठाऊंगा मैं स्टिल सब्जेक्टेड टू नैब होगा। बिल्कुल ठीक है। चले यही रुक जाइए, एक और सवाल लीजिए
शुगर कमीशन इमरान खान साहब ने बनाया, हुकूमत ने बनाया, उसमें ईसीसी का फैसला है कि सब्सिडी देनी है, लेकिन उसके बाद शुगर कमीशन बनता है और उसमें कहा जाता है ये सब्सिडी गैर कानूनी तौर पर दी गई है और इसमें कोई 250-300 अरब रुपए बनाए गए हैं शुगर स्कैंडल में, ये कमीशन कह रहा है। और फिर अगर ये ऑर्डिनेंस बिल बन जाता है तो शुगर कमीशन को फायदा होगा और जितने लोग नामजद किए हैं सारे के सारे बरी हो जाएंगे। आप फिर तरह से रिपीट करती है जो आपने जुमले कहे कि वो नाजायज तरीके से कमीशन की सब्सिडी दी गई है। जहां जायज सब्सिडी दी गई है वहां कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, जहां नाजायज सब्सिडी दी जाएगी उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन सियासतदान को, उन टेक्नोक्रेट्स को, उन शुगर मिलों को, सबको देने आना चाहिए नैब के। किसने कहा कि नहीं आए? चलें, ठीक हो गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आ जाता हूं। शैला रजा साहिबा, हुकूमत इन चेयरमैन नैब को तौसीह क्यों देना चाहती है, क्यों लाज़िम व मलजूम है ये? अच्छा, फिरदौस शमीम नकवी साहब ने बात शुरू की ऑपोजिशन को ये मशवरा देते हुए कि इनके पास टाइम था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बदल लेते। तो जनाब, आपको तो पूरी कौम मशवरा दे रही है कि ना वजीर खजाना बदले, ना वजीर खारजा बदले, ना कुछ बदले, आप सिर्फ वजीर आजम बदल लें। ये तो पूरा मुल्क आपको मशवरा दे रहा है। ऐसे मशवरे हम भी दे सकते। बात यह है कि पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जब तक गिल्टी ना हो उस वक्त तक बेशुमार मुकदमे चल जाएं, कोई बात नहीं। 2 मुकदमों में वो बरी हो चुके हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और वो फेस कर रहे हैं मुसलसल जबकि पार्टी फंडिंग केस जो है वो इतना बड़ा स्कैंडल है और वजीर आजम फेस नहीं कर रहे हैं, इससे के पीछे छुप रहे हैं। तो प्लीज ये मशवरे हमें ना दें और हमें ये भी मत बताएं कि गलत है, क्योंकि आपको जो सही बात बताता है आप उसे पार्टी से निकाल देते हैं, चाहे जस्टिस रजी हो या हामिद अली खान हो। और हामिद अली खान ये कहते हैं कि अगर जो है मुकदमे चल रहे हैं तो उसमें कंसल्टेशन कोई हर्ज नहीं। पूरी बार जाहिल है आपके नजर में, पूरे सुप्रीम कोर्ट बार और हाई कोर्ट बार और हर जगह वो सब कह रहे हैं कि ये गलत है, गलत कानून है और कंसल्टेशन हो सकती थी और होनी चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो मुझे कहना है कि आपकी तो सिंपल मेजॉरिटी है, 6 दिन आपने कोरम पूरा नहीं किया, आप ये लाएं वहां पे डिस्कस करें। आपको क्या अपने लोगों से भी अब डरा गया है? लेकिन हुकूमत तो आपको, शैला रजा साहिबा, मशवरा दे रही है कि अगर आपको कानून पसंद नहीं आ रहा है तो आप अदालत में जाएं। देखिए, मैं इनके मशवरों पे नहीं चल रही, इनके तो अपने मशवरे एक दूसरे के काम नहीं आ रहे। इनकी अलाई जमाते इस्लामी खुश नहीं है, सारी पार्टीज खुश नहीं है, बार खुश नहीं है, सब खुश नहीं है, तो ये अकेले काबिल है। और मेरी समझ में नहीं आता कि एक आदमी सर से पांव तक इन्हें कैसे पसंद आ गया ऑपोजिशन का मुंतखब किया हुआ। ऑपोजिशन ने कैसे मुंतखब कर लिया है एक सही आदमी सर से पांव तक, जो आप उसको पीछे ही नहीं छोड़ रहे उसका, जबकि वो कह चुके हैं कि मेरी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी है। और लेकिन आप हैं कि उनको अपने साथ जकड़े में, वो तो कह चुके थे कि मुझे नहीं है, लेकिन आपने, क्योंकि वो खुद कह चुके थे कि मैं 9 मिनट में गिरा दूं, आपने कहा नहीं हम तुम्हें पकड़े रहेंगे। अब आती है बात, देखिए अब ये कहते हैं काबीना वफाकी और सूबाई काबीना जो है उनको भी इससे इस्तिस्ना हासिल है। तो भाई आपकी काबीना के वजीरों को होगा, सिंध में तो मेरी हुकूमत है और जब कुछ नहीं बस, हमारे पार्टी की हुकूमत है, जब कुछ नहीं बस चला तो मुझे भी जो है वो नैब में घसीटा गया, 33 सवाल दिए गए और वो सवाल पूछा गया जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग मुझे दिए थे, जिसमें उन लोगों का नाम नहीं था, वो चीज नहीं थी, लेकिन मुझे परेशान। तो शैला साहिबा, अब तो आपको भी फायदा हो जाएगा इस ऑर्डिनेंस के तहत। कि हमें नहीं होगा, हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर ऑलरेडी मुकदमात है। जब ये ऑर्डिनेंस आएगा तो जो पुराने हैं वो उसी के तहत चलेंगे और जो नए हैं वो बनेंगे ही नहीं। अब सारे लोग जो आप कह रहे हैं कि वर्क एंड सर्विसेज से लेकर और बहुत सारी चीजें और काबीना और ब्यूरोक्रेट्स, तो इसका मतलब है कि रिंग रोड स्कैंडल 0, मालम जब्बा 0, आपका जो बीआरटी पेशावर है वो 0, जिसमें जो है इतनी बड़ी जो है वो करप्शन बताई जा रही है और मुल्क जो है वो 123 पे नहीं पहुंचा ना। कौन करप्शन कर दोबारा आता हूँ बात कर ली। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो ये है कि जिस सदर को हमने पावरलेस किया था कि ये एक सेरेमोनियल
जो है वो सदर की जो है वो Right. एक ओहदा ठीक। होता है, आपने पार्लियामेंट को बाईपास करके पार्लियामेंट को सदर के बाईपास पास किए, फिर बिल्कुल बात- ठीक है। मैं आता हूं दोबारा शैला रजा साहबा, बिल्कुल ठीक। के पास, और फिर भी आपने जो नैब का कानून है जो कि पाकिस्तान के आइन से मुतसादिम है, कि पाकिस्तान का आइन 14 जमानत देता है और ये राइट, बिल्कुल ठीक है, जमानत नहीं दे बिल्कुल रहा, ठीक। आपने इसको इतना सख्त कर दिया कि नाक आने वाली बात है। और इसी तरह जो है रिमांड भी इसका आपने आईने पाकिस्तान से मुतसादिम रखा। तो बिल्कुल आपने ठीक है, साबित बिल्कुल कर ठीक दिया है। मैं कि शैला साहबा ये- आपकी तरफ आता हूं, आपकी तरफ आता हूं। जाफर इकबाल साहब, आप कैसे कह रहे हैं ये तरमीमी ऑर्डिनेंस एनआरओ है, हुकूमत अपने ही लोगों को एनआरओ दे रही है, अपने रुफका को वजीर आजम साहब दे रहे हैं, अपनी काबीना को एनआरओ दे रहे हैं? ये मुझसे पूछे जाफर इकबाल साहब से, जाफर इकबाल साहब से। जाफर साहब आप मेरे साथ हैं जी? ठीक हो गया। इमरान शफीक साहब, शायद जाफर इकबाल साहब लाइन पर मौजूद नहीं है। इमरान शफीक साहब, कैसे लीगल इसका स्टेटस देखते हैं जो तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है? इसमें तो हुकूमत कह रही है और कुछ लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि कुछ तरामीम अच्छी हैं, बेहतर हैं। देखिए मितला साहब, इसमें बड़ी बुनियादी एक चीज है जिसको नजर में रखने की जरूरत है, और अपनी डिस्कशन को, अपनी बहस को उससे डाइवर्ट करने से नुकसान है। वो क्या है? वो ये है कि इस ऑर्डिनेंस का बुनियादी मकसद जो ये कह रहे हैं हुकूमत को एनआरओ देना है, इससे कहीं बढ़कर है। और वो बुनियादी मकसद ये है कि चेयरमैन नैब जो है वो उसकी तौफीक हासिल कर ली जाए और किसी तरीके से जस्टिस जावेद इकबाल साहब को चेयरमैन नैब बनाया जाए। इस ऑर्डिनेंस की बुनियादी प्रोविजन ये है। और उसके बाद दूसरी बड़ी बुनियादी प्रोविजन इस केस की, इस ऑर्डिनेंस की ये है कि इस ऑर्डिनेंस के जरिए अपने मनपसंद जजेस की तैनाती की जा सके रिटायर्ड लोगों में से। सदर पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान में से जिन लोगों को चाहें उनको चुनकर अपने ही लोगों को नवाजते हुए आप लगा दें एहतसाब अदालतों के जज। ये जो जज होंगे ये बेसिकली जज नहीं है मेरी नजर में, ये वो एग्जेक्टिव के चुने हुए वो लोग हैं। आर्टिकल 175 है दस्तूर पाकिस्तान का, जो बहुत वाजे है कि अदलिया और इंतजामिया बिल्कुल अलग अलग होंगी और अदलिया की तैनातियों में किसी किस्म का कोई दखल एग्जेक्टिव का नहीं होगा। जो अदलिया पहले जो एहतसाब अदालतों में जजों की तकर्री का तरीकेकार था, उसमें जो है अदलिया ही में से जजेस, सेशन जजेस को लगाया जाता था, वो एहतसाब अदालतों में जज लगते थे। वो यकीनन अदलिया से जब जज आता है तो इस तरह नहीं हो सकता कि बहरहाल जिस तरह आप रिटायर्ड अपने ही मनपसंद लोगों को लगाएंगे और 68 साल की उम्र तक उनको नवाजने के लिए लालच देंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि वो एहतसाब करेंगे। ये कभी एहतसाब नहीं होगा। इस ऑर्डिनेंस के जरिए होना क्या है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। एक तो ये है कि चेयरमैन नैब को इन्होंने तैनाती कर देनी है, यानी अपना एहतसाब का चेयरमैन भी अपना और उसके बाद जज भी अपने लगा देने हैं। और उसके बाद फिर ये जो बाकी बातें हैं ना एनआरओ को हुकूमत को देने की, ये तो 4 माह में ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। ये चीजें लैप्स कर जाएंगी। ना इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन वाले डिसीजन या कैबिनेट वाले डिसीजन वाली बात रह जाएगी, ना ही जो प्राइवेट लोगों को रिलीफ देने वाली बात रह जाएगी, ना टैक्स वाले लोगों को रिलीफ देने वाली बात रह जाएगी। ये सारी बातें जो है वो 4 माह तक के लिए। पहले भी एक ऑर्डिनेंस आया था, आपको याद होगा 2019 में जब ये हुकूमत आई थी, तो उस वक्त भी उसके बाद वो ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया, वो केसेस उधर ही पड़े रहे। वो बिजनेसमैन तबका उसी तरह आज भी लीलो ख्वार हो रहे हैं। वो ये सारी चीजें इसी तरह चल रही हैं। इस ऑर्डिनेंस नहीं तो अगर देखें, बात सुनिए इमरान शफीक साहब, अगर ये ऑर्डिनेंस लैप्स होता है तो उस सूरत में चेयरमैन नैब की भी जो तकर्री होगी वो रिवर्स नहीं हो जाएगी? ये देखें, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन बन जाएगा कि एक ऑर्डिनेंस जो बुनियादी तौर पर खुद 4 माह के लिए है वो किसी को 3-4 साल के लिए तैनात कैसे कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक क्वेश्चन है क्योंकि एक दस्तूर की प्रोविजन भी है और जनरल क्लॉजेज एक्ट भी पाकिस्तान का वो ये कहता है कि अगर ऑर्डिनेंस के तहत जो इकदामात हो जाए, ऑर्डिनेंस आए और उसके जरिए कुछ इकदामात हों, कुछ राइट एक्रू कर जाए, कुछ पोजीशन ले ली जाए, तो फिर वो ऑर्डिनेंस के खत्म होने के बाद वो ऑटोमेटिकली रिवर्स नहीं हो जाएगी। इसलिए ये ऑर्डिनेंस, हाँ, एक ऑर्डिनेंस अदालतों में चले, मैं ब्रेक के बाद दोबारा आपकी तरफ आऊंगा जी। मुझे यहाँ ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। जाफर इकबाल साहब, कोई करप्शन ऐसी है, कोई स्कैंडल ऐसा है जो ब्यूरोक्रेट के बगैर हो सके, जिसका वफाकी या सूबाई कबीना में डिसीजन ना हो? और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि टैक्स के मामलात में भी इस्तिस्ना दिया जाएगा। ये न्याजी सर्विसेज लिमिटेड में इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में एतराफ किया था कि मैंने टैक्स अवॉइड करने के लिए वहां पे ऑफशोर कंपनी बनाई थी। तो इस ऑर्डिनेंस को मुस्लिम लीग नून कैसे ले रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मित्ला साहब। 3 साल से ऊपर अरसा होने को गुजरा है और अभी तक कोई एक ऐसी बात नहीं जो इमरान खान साहब ने कही हो और फिर वो वापस ना उससे बुड़े हों या यू टर्न ना लिया हो, और अगर बदतमीजी ना हो तो थूका अपना चाटा ना हो। एक तरफ नारे हैं हाजी सनाउल्लाह बनने के, एक तरफ नारे हैं मुल्क से करप्शन के खात्मे के, एक तरफ नारे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती थी उसे खत्म करने के, और दूसरी तरफ 3 साल में कोई एक काम ऐसा नहीं जो करप्शन के बगैर इस हुकूमत ने किया हो। हर काम में करप्शन आपको नजर आएगी और इतने बड़े पैमाने पे नजर आएगी जिसका कहीं अंदाजा नहीं। मैं तो बारहा पहले भी कह चुका हूं कि चीनी और गंदम के मामले में वाहिद मुजरिम जो बिल्कुल सामने है एक रोजे रोशन की तरह, या वो जनाब इमरान खान न्याजी साहब हैं। एक्सपोर्ट की इजाजत काबीना ने दी, सब्सिडी काबीना ने दी, और तब दी जब मेरी अपनी जरूरत के लिए न काफी थी गंदम भी और चीनी भी। अब ये जो ऑर्डिनेंस लाए हैं इसमें भी सारी वो चीजें हैं जिसमें वो अपने लिए एनआरओ चाहते हैं, और जो चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देना चाह रहे हैं उसमें भी सिवाय इसके नहीं। चेयरमैन नैब ने, आपको याद होगा, एक किसी सहाफी ने इंटरव्यू किया, शायद जावेद चौधरी साहब ने किया था, और उसमें कहा कि अगर मैं 2-4 बुजरा की फाइलें उठा लूं तो हुकूमत गिर पड़ेगी। तब से हुकूमत गिर पड़ी उनके पाँव में, और फिर ही इनके किसी मुआविन और मददगार ने एक वीडियो भी ने ला दी। तो वो वीडियो इस्तेमाल पहले कोई और जरा अपने अंदाज में कर रहा था, अब हुकूमत भी वो इस्तेमाल कर रही है। तो ये नैब ऑर्डिनेंस सरासर जमहूरियत की भी नफी कहेंगे, इखलाकियात की भी नफी कहेंगे, और ये एनआरओ है जो हुकूमत ने अपने आप को खुद इन सिटिंग कैपेसिटी में दिया है। बिल्कुल सही। ये फवाद चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि आधी तजावीज वो हैं जो आपने कुछ अर्सा पहले मसवदा तरमीमी ऑर्डिनेंस के लिए दिया था, और मसवदा कानून था उसमें 34 शिकें आपकी जानिब से प्रपोज थी, तो उसमें से आधी उन्होंने डाल दी हैं। तो फिर एतराज तो नहीं बनता अपोजिशन का? जी बिल्कुल, हमारा एतराज फवाद चौधरी साहब पे तो बिल्कुल ही नहीं है। उन पे एतराज तो कल को पीटीआई करेंगे और इमरान खान साहब करेंगे, जब इन्हें छोड़ के वो किसी नए घोंसले के अंदर जा तशरीफ फरमा होंगे। फवाद चौधरी साहब इतने बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं कि हमारी लिखी हुई तजावीज को मेनूअन शामिल कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब इतने बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं कि जो उनके बाप से बड़ी उम्र का है उसको कैसे मुखातिब करते हैं रोज, वो भी आपके सामने है। इतने बड़े जमहूरियत के चैंपियन हैं कि आज वो इमरान खान की वकालत कर रहे हैं, पहले चौधरी साहिबान की, पीपल्स पार्टी की, परवेज मुशर्रफ की। वो तो बहुत ही बड़े जमहूरी आदमी हैं और उन्हें जमहूरी रवायात का ख्याल भी बहुत है और बायस भी बहुत है। उन्होंने तो वो बातें करनी है जिनसे इस हुकूमत में बैठे लोगों का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ठीक है जी। और वो ये करते जाएंगे। अगर इतने वो मेहरबान हैं हमारे साथ, वो बैठना पसंद नहीं करते, लेकिन हमारी लिखी हुई बातें भी तो हमारी हैं। वो जो चेयरमैन नैब के लिए नाम देने हैं वो भी हमने तहरीर करके देने हैं। आप ना गुफ्तगू कीजिएगा, वो भी तहरीर हमसे ले लें और उन्हीं में से लगा दें। बिल्कुल ठीक है। शैला रजा साहबा, हुकूमत कह रही है बेसिकली रोजाना की बुनियाद पर जो समाअत होने जा रही है केसेस की, वो भी अपोजिशन की परेशानी का बायस बन रही है। भाई परेशानी तो अपोजिशन की है ना, ये तो दूध के धुले हैं। बीआरटी इनकी नहीं छेड़ी जाएगी, मालम जब्बा इनका नहीं छेड़ा जाएगा, पीडो जो ये पख्तूनख्वा जो है इलेक्ट्रिकल केस था वो नहीं छेड़ा जाएगा, नथिया गली हाउसिंग स्कीम वो नहीं छेड़ी जा रही, इनके आटे चीनी के स्कैंडल नहीं छेड़े जा रहे, इनके जो क्या छेड़े जा रहे हैं, इनके जो रिंग रोड है वो इन सबको बचा रहे हैं। फिर सीसीआई में जो फैसले हैं और जो कि सारे सूबों के लिए बेहतरी के लिए हैं और जिसमें ये सूबों का हक मारते रहते हैं, और इन्होंने सीसीआई की मीटिंग नहीं बुलाई थी जब इनके जो जहां पे इनकी हुकूमत है वहां का जब इन्होंने इस्तेकामी बजट रोका और वो चीखे
तो इन्होंने बुलाया, वो डिस्कस नहीं हो सकते। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में जो सारे हिसाब किताब हैं कि किस तरह से बजट की क्या यूटिलाइजेशन, किस तरह से क्या होना है, एक प्लानिंग है और उसमें उसको देखा जाएगा, वो चैलेंज नहीं हो सकता। सूबों का हक पानी का मार रहे हैं, वो चैलेंज नहीं हो सकता। काबीना चैलेंज नहीं हो सकती। तो ऑपोजिशन की काबीना, सिंध की काबीना, तो मैंने कहा कि मुझ तक को बुला भेजा बिल्कुल सही है, आपने। बिल्कुल ठीक है। तो शैला रजा साहबा, एक तरफ तो हम चेयरमैन नैब को तौसीह दी जा रही है, दूसरा जजेस भी अपने मन पसंद होंगे, तो आपको डर है, खौफ है कि इलेक्शन से पहले अपोजिशन की तमाम लीडरशिप जेलों में होगी, क्योंकि इस तरह की बात हो रही है? देखिए, की बात नहीं है, तो दीवार पे लिखा नजर आ रहा है कि सदर मुमलिकत जो हैं, जिनको मैं बार बार कह रही हूं कि बस उनको मेरे अजीज हमवतनों का इख्तियार नहीं दिया उन्होंने सदर मुमलिकत को इतने इख्तियार दे दिए, अदलिया को सेकेंडरी कर दिया, पार्लियामेंट को जीरो कर दिया। फिर जो मैं बात क्योंकि इनकी भी हुई थी फवाद साहब की, चौधरी फवाद की, तो भाई रोना धोना जो है ना, ये मसला हमारा नहीं है। रो तो आप रहे थे जो आपने ये कर दिया। अगर ये हमारी ही अमेंडमेंट्स थी तो असेंबली में ले आते, हम बिल्कुल कहते जी हमने अमेंड किया था, ये वो अमेंडमेंट्स लेकर आए। सेकंड बात ये कि रो तो हम वाकई रहे हैं कि आपकी डिक्टेटराना जो सोच और जहनियत है कि आप क्या करने जा रहे हो, आप तो मुशर्रफ के भी बाप निकले। धोने की आपको जरूरत है कि आप धोएं अपने दाग, लेकिन आपसे धुल नहीं सकते, तो आप चीख चीख के अगलों को बुरा कह रहे हैं। मैं ना बड़ी संजीदगी से वैसे तो हमारे आपने जिनको साथ बिठाया था उन्होंने बड़ी इस पे बेहतर बात की। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि आप अपनी अदालतों को बेहतर करते कि वहां पे 55-56 हजार केसेस हैं, वहां पे ज्यादा जजेस अपॉइंट करते। आप नैब के कानून को खत्म कर दें, आपके बुनियादी आइन से मुतसादिम है। आप FIA को जो है मुस्तहकम करें। नैब की एलिजिबिलिटी पे तो पहले ही सवालात हैं कि इसके अफसरान जो हैं वो काबिल नहीं है, इसके अफसरान में सलाहियत नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक हो गया। वो हुकूमत अदालत जाने की बात कर रही है, पहले भी पूछा था, मुस्लिम लीग नून ऐलान कर चुकी है। शैला रजा साहबा, आप मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर अदालत जाएंगे, अदालत से रुजू करेंगे इस तरमीमी ऑर्डिनेंस पर? देखिए, ये बात मेरे पार्टी के बड़े बताएंगे, इसको मैं नहीं कह सकती। जिस लेवल पे ये फैसले होंगे वहां मैं नहीं। बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इमरान शफीक साहब, ब्रेक के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान शफीक साहब, इस ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत के किन किन जोमा को, किन किन मिनिस्टर्स को फायदा होगा? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा फायदा तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब को होगा। उसकी वजह यह है कि जिन कैबिनेट में उसके हेड तो वो हैं जिसमें ये फैसले हुए हैं, और जो सब कमेटीज हैं जिनमें फैसले हुए उनको तश्कील करने वाले वो खुद हैं। तो इसलिए जो बड़े बड़े स्कैंडल हैं उनमें बहरहाल चूंकि पूरी कैबिनेट के वो डिसीजन हैं, तो और उन डिसीजन की बुनियादों पर ही ये सारे काम हुए हैं, इसलिए बहरहाल काफी तादाद में इस अमेंडमेंट के जरिए, यानी इस हुकूमत के जितने भी काम हैं अगर आप उन पर गौर करें, तो अगर पंजाब में कोई काम हुआ है तो बहरहाल बुज़दार साहब कहते हैं मेरी काबीना ने इसका फैसला किया हुआ है, और मरकज में अगर कोई काम हुआ है तो वो खुद प्राइम मिनिस्टर ने उसके फैसले किए हुए हैं, या फिर जो इनके वुज़रा हैं उनकी सब कमेटीज बनी हुई हैं, उन्हीं काउंसिल्स में इकोनॉमिक जो भी कमेटीज हैं इनकी CCI में, तो ये फैसले तो इन्हीं के हैं। इसलिए इनका जो भी फॉल उठेगा वो बहरहाल इसका फायदा हुकूमत को मिलेगा। जो अमेंडमेंट है, किस किस केसेस में हुकूमत को फायदा हो सकता है इस ऑर्डिनेंस के तहत? देखें, 4 तो बड़े स्कैंडल बताए जा रहे हैं। शुगर वाला स्कैंडल बताया जा रहा है, उसका गंदम का स्कैंडल बताया जा रहा है, ये जो LNG की जो दोबारा से एग्रीमेंट है, खरीद है, उसके बारे में बताया जा रहा है, और बाकी बहुत सी प्राइवेट सोसाइटियों की अभी केसेस आने हैं। इनके बहुत से वुज़रा हैं जिनकी हाउसिंग सोसाइटियां हैं, और उसमें अलीम खान साहब की सोसाइटी है। बाकी जो अब चूंकि नैब ही तहकीकात करेगा, बहुत सी सोसाइटियों में तो जुल्फी बुखारी साहब का भी नाम आया, जो पंजाब में रिंग रोड का जो आया,
सरवर साहब का भी नाम आया, तो उनकी तो ये बहुत सी सोसाइटियां हैं। जब आप ये कहते हैं ना कि प्राइवेट जो एंटिटीज हैं या प्राइवेट बिजनेसेस हैं या प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हैं, अगर उसमें कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर शामिल नहीं है तो उसको फिर नैब के परव्यू से निकाला जाएगा। तो उसमें बहुत से लोग हैं जो बहरहाल इसमें आ सकते हैं, लेकिन ये सारी अभी इस वक्त जो बात टैक्स के मामले पर न्याजी सर्विसेज लिमिटेड जब केस चल रहा था तो आप सुप्रीम कोर्ट में रेगुलरली जाते थे, तो उस केस में भी इमरान खान साहब को किसी तरह का जवाब देना पड़ सकता है अगर ये ऑर्डिनेंस नहीं होता तो? देखिए, एक बड़ी अहम बात ये ध्यान में रखिए कि अभी तक संजीदा तौर पर पिछले 3 साल में जितने भी बड़े स्कैंडल आए हैं, किसी भी पाकिस्तान के इदारे ने, नैब हो या FIA हो, संजीदा तौर पर अभी तक तो इन केसों को लिया ही नहीं। और नैब ने तो इब्तदाई तहकीकात ही शुरू नहीं की इनमें। बिल्कुल बहुत से तो स्कैंडल हैं जिन पर नैब ने हाथ ही नहीं लगाया। बिल्कुल तो सही इसलिए है। ये सारी क्या और हैं इस ऑर्डिनेंस में एक शर्त ये भी है इमरान शफीक साहब के जो चेयरमैन नैब होगा उसके अगेंस्ट ऑर्डिनेंस के जरिए कार्रवाई हो सकेगी। जाफर इकबाल साहब, ये शिक क्यों डाली गई है? देखिए, क्यों डाली गई है, जहां वीडियो काम नहीं करेगी वहां फिर ऑर्डिनेंस काम कर देगा। बात सारी शायद मतलब साहब बिल्कुल क्लियर है कि ये जितना टोला बैठा हुआ है और जितने इनको लाने वाले हैं, इनके चाहने वाले हैं, वो सब बिल्कुल मिलजुल के मुल्क को उस नहज पे पहुंचा दिया कि मुशर्रफ साहब भी वहां पर नहीं पहुंचा सके थे, जो बावर्दी बैठे हुए थे और जिनके पास सारे इख्तियारात थे। अब ये सारी कार्रवाई सादा सा है कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन क्यों देने जा रहे हैं, ऑपोजिशन को दबाने के लिए, और उनके ऊपर हाथ क्यों रखना चाहते हैं कि वो अगर इनके बारे में कोई सवाल उठाएं। जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बातें पूछी, इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाए, दस्का के इलेक्शन की रिपोर्ट बनना शुरू हुई, ये सारे चीखों पुकार लेके और वो आग लगा दो, जला दो, वही जो इलेक्शन से पहले शेख रशीद की जुबान थी वो बोलने लग पड़े। तो ये ऑर्डिनेंस नैब का, चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सारी वो जो किया करता है उसको छुपाने के लिए, और कोई इनसे इस मुल्क की तबाही का सवाल न कर सके। लेकिन शायद ये इनका वहम है। बिल्कुल ठीक है। अगर जाफर इकबाल साहब टाइम खत्म हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट आप जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वेट कर देता है इस ऑर्डिनेंस को या जो कानून बनने जा रहा है उसको, उस सूरत में क्या करेंगे? सड़कों पर आएंगे? देखिए, सड़कों पर आना भी, असेंबली का फोरम इस्तेमाल करना भी, एहतजाज करना भी, वो सारी चीजें मौजूद है। लेकिन इससे बड़ी चीज कि ये जो आज खुदा बन के बैठे हैं, जो इनसे पहले खुदा बनते रहे, जरा उनका हशर तो देख लें। आज मुशर्रफ साहब वतन वापस आने को नहीं है, आज वो आ सकते नहीं है, उन्होंने एक इलेक्शन लड़के देख लिया, तो क्या ये समझते हैं कि सदा इनका इख्तियार रहना है? जब भी अवामी नुमाइंदों को मौका मिला वो इन तरमीम को, इन चीजों को खत्म भी करेंगे और इनको जो आज माफिया बने हुए हैं इनको पूछेंगे भी सही। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। शैला रजा साहबा, चेयरमैन नैब का भी स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं बड़ी मछलियों के खिलाफ बड़े ठोस शवाहिद मौजूद है। किसने मना किया है? 3 साल हो गए उन शवाहिद को पेश करने से। आप तो इतने आगे जा चुके हैं कि उस्मान डार जैसे लोग कहते हैं कि हम नैब में जा जाके इतनी मोटी मोटी फाइलों में सबूत देखें, तो किसने मना किया है? आप तो इतने पावरफुल हैं कि सूबे में केस चलाने के बजाय एक बीमार आदमी को बार बार इस्लामाबाद बुलाते हैं, तो किसने मना किया है भाई? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा आप इतना ऐसे क्यों चला रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। शैला साहबा, इस बात का भी जवाब दे दीजिए। कहा जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर मान जाएगी। ये इस तरह की बातें जो है ना शेख रशीद जैसे लोग करते हैं, और एक जगह वो बात सही भी कर रहे हैं कि कुछ लोग टार्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपने मुल्क को जंगल का कानून दे दिया, आइन हटा दिया, तो लोग तो टार्जन बनेंगे ना जो बहादुर हैं। अलबत्ता अगर किसी ने टार्जन पढ़ा है तो उसमें शेख रशीद का किरदार चोला का रहेगा। बिल्कुल सही है। इमरान शफीक साहब, ब्रीफ से कमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। मुझे ये बताइए कि इस ऑर्डिनेंस में ये भी कहा गया है कि अगर नैब के पास कोई केस ज्यादा मुद्दत तक पड़ा रहता है और कोई फैसला नहीं हो पाता तो मुतल्लिका इदारों को रेफर कर दिया जाएगा। फिर नैब के कयाम का जवाब क्या है? नहीं, इस ऑर्डिनेंस में ऐसी बात नहीं है कि अगर ज्यादा देर पड़ा रहेगा तो वो दूसरे इदारों को भेज दिया जाएगा।
آرڈیننس کی جو مسودہ نظر آیا ہے اس میں ایسی بات نہیں ہے. اصل میں یہ آرڈیننس اگر آتا ایکٹ کے ذریعے اور آرڈیننس کے ذریعے اگر یہ ساری کارروائی نہ کی جاتی تو اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی تھیں، لیکن اب وہ جو اس کے مقاصد ہیں وہ اتنے بظاہر مذموم نظر آتے ہیں کہ جو اس کی چھوٹی موٹی اچھی چیزیں ہیں وہ بھی ساری خراب کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہو. مطلب ضمانت کا اختیار احتساب عدالتوں کو دیا، لیکن ایسا دے دیا کہ اب ضمانت وہ لے لیے تو تب بھی ملزم ضمانت پر رہا نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. عمران شفیق صاحب، آپ کی آمد کا، شہلا رضا صاحبہ، جعفر اقبال صاحب، آپ بھی شو میں موجود تھے، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.